एज आई कीप सेइंग कि मेरे लिए कोई एलिवेटर नहीं था कि फर्स्ट से सीधा 10th फ्लोर पे चले जाता है। आई हैव क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स। जब चढ़ रहे थे तब लगता था क्या है यार, सब करना पड़ रहा है। वन थिंग दैट हैपेंड आफ्टर दिस फिल्म विथ मी इज दैट इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मैं हमेशा ये सोचता था थिएटर के दिनों में भी और अभी भी कि राइटर और डायरेक्टर के दिमाग में स्टोरी लिखते या सोचते टाइम अगर तुम्हारा चेहरा आता है, दैट्स वेयर यू वांट टू रीच एज एन एक्टर। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कॉमेडी दैट लेस इज मोर। इसको जितना टाइट, जितना कम, जितना सटीक किया जाए उतना ज़्यादा पहुंचता है। सो मैंने ना इसके बारे में पढ़ा था कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर ड्रग वर्क, वो उसका काम कैसे होता है लार्जली इन ह्यूमन बॉडी। तो कहीं ना कहीं प्रतीक के पास भी एक ऑल्टर ईगो है जो उसकी एक्टिंग में निकलती है। यार ये होता ही होगा। Why do you as an actor wanted to sign a film as normal as this? इनफैक्ट जितना नॉर्मल होता है ना कैरेक्टर उतना ज़्यादा लेयर्ड होता है, इज व्हाट आई फील। इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश। वी हैव नेवर सीन दिस वर्ल्ड ऑफ फायर फाइटर्स सो क्लोजली। Or forget about closely, we have never explored this. The biggest heroism is that whatever he does it without heroism in his mind. He does it with passion. Because he was the only guy who kept pushing me. Leave your job. You are cut out for this. तू यही कर, फुल टाइम कर। और मैं उनको उल्टा बोलता था कि पापा ऐसे नहीं होता है, रुक जाइए थोड़ा, पहले घर ये वो थोड़ा सेटअप करते हैं। पर कोई ऐसा रोल जो वो अंदर के एक्टर ने थोड़ी सी लालच दिखाई, ये मैं भी करता तो मज़ा आता। ऐसे तो बहुत सारे हैं यार। I'm going to sum up the year 2024 with a performer who has given us 4 such performances, and we are going to dissect one by one each of them. But before that, let me assure you this is not a scam, because Prateek Gandhi is going to make sure that we begin and we also close the year with a bang. How are you? I am absolutely thrilled to be here. Thank you very much for having me. 4 performances, 3 of them which of course we have been widely discussed, and one of course we will be taking through. Thank you for enlightening me about it though. How do you sum up 2024 for you as an actor, for starters? Absolutely fulfilling year for me. Because after Scam, I guess this was the year where I could display all different characters, different stories, different genres, and a little more range as an actor than what that people have seen me doing. So fulfilling and exciting year for me. And I'm happy it started with Madgaon Express, a comedy which I had never explored for screen before Madgaon. So it gave me a good start. So with a good start, I'll ask the first sub part of it. There's a scene where you get like you fall on the bed and then the entire substance, I can only say the word, comes out, and how Pinky then like lose the plot. How did you land it? That what was your narration like? कोई कैरेक्टर जब कुणाल सुना रहे थे आपने कि कहीं बताया था कि him being an actor he could give you the beat of the character, right? But how did you made its own? Because it was trippy. First of all, no, anything like this, any character, जैसे अगर किसी ड्रंकर्ड का कैरेक्टर करना है तो ये बहुत ही ट्रिकी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टर्स कैन डू इट, कैन ओवर डू इट। करेक्ट। स्लरिंग ज़्यादा और ये मतलब इतना फैल जाते हैं। वैसे ही थोड़ा मेंटली अनस्टेबल कैरेक्टर होता है तो भी लोग फैल जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसे जोन है ना जहाँ पर ये इसका एक ही पॉइंट है कि यहीं पर लैंड होना है। 2 मिलीमीटर इधर 2 मिलीमीटर इधर भी वो लैंड नहीं हो पाएगा। तो एक तो वैसा था वो कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, कुणाल, टू बी गिवन ऑल द क्रेडिट्स फॉर दिस, द वे ही इज़ रिटन इट, द वे ही नरेटेड इट टू मी, एंड देन ही लेफ्ट इट ऑन that you do it your way. And then I guess the theatre experience that I had of all these years helped me a lot. But one thing that happened after this film with me is that it gave me a lot of confidence for the way I have always seen comedy, and I have always believed in comedy that less is more. इसको जितना टाइट, जितना कम, जितना सटीक किया जाए उतना ज़्यादा पहुँचता है। सो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने इतना कुछ उसमें नहीं किया था। ये आदमी गिरता है एंड वॉट एवर सब्सटेंस दैट गोज इन हिज ब्लड स्ट्रीम मेक्स हिम डू वॉट एवर ही डज। सो आई हैड टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज दैट सब्सटेंस और उसका इफेक्ट जनरली होता क्या है ह्यूमन बॉडी पे। एंड एडेनीज की, जैसे हम ड्रंकर्ड कैरेक्टर की बात करें, हमने बहुत फेमस किस्से सुने कि ठीक है हमने एक पेग लगा के वो सीन कर दिया था। इस केस में यू डोंट हैव दैट लिबर्टी टू डू दैट। नॉट एट ऑल। सो देन हाउ यू लेट इट गो?
सो मैंने ना इसके बारे में पढ़ा था कि हाउ डज दिस पर्टिकुलर ड्रग वर्क, वो उसका काम कैसे होता है लार्जली इन ह्यूमन बॉडी। और आप जितने भी वाइट पेपर्स या कुछ भी देख लो आप, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे काम करता है। इट गोज लाइक दिस, देन इट स्टेज एंड देन इट हैज अ डाउनर, एंड डाउनर में लोग कैसे बिहेव करते हैं, इसमें लोगों का कैसा बिहेवियर होता है। ऑफ कोर्स इट चेंजेस पर्सन टू पर्सन, एंड उसका जो पर्सनैलिटी होता है ना, उस हिसाब से भी वो चेंज होता है। दिस इज व्हाट आई रेड कपल ऑफ थिंग्स लाइक दिस कि इसमें कैसे करते हैं। और पिंकू का जो कैरेक्टर बनाया था वो ऐसा था कि बहुत ही सहमा हुआ है, और उसका ऑल्टर ईगो जो कॉन्स्टेंटली दबा के रखा हुआ है ना, दैट वाज समथिंग दैट गेव मी दैट प्लेस टू प्ले। ही फ्लिप्स, तो उसका ऑल्टर ईगो बिकम्स हिज मेन ईगो, नाउ ही इज बिकम हिज ऑल्टर ईगो। तो उसे जो कुछ बोलना है जो बोल नहीं पाया, जो कुछ करना है जो कर नहीं पाया ना, वो सब बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रतीक के पास भी एक ऑल्टर ईगो है जो उसकी एक्टिंग में निकलती है। यार ये होता ही होगा कि द वे आई अंडरस्टैंड पर्टिकुलर इमोशन, जिसे मैं मैन्यूवर करना चाहता हूँ, जिसे मैं करना चाहता हूँ, पर एक्टर के साथ उल्टा ज़्यादा होता है, और मेरे साथ वो उल्टा केस ज़्यादा होता है। दैट वॉट एवर कैरेक्टर दैट आई प्ले, उसका छोटा सा थोड़ा रेसिड्यू मेरे साथ रह जाता है। इसका क्या रहा? इसका पिंकू का ये था कि उसका एक जो इनोसेंस था ना, कि नहीं ना ऐसे कैसे तू, मैं नहीं जा रहा, मैं, एंड उसका डर था, एंड देन सडनली ही फ्लिप्स। तो उसका पूरा रेंज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है विच आई कैन पर्सनली रिलेट। पिंकू तो यार मतलब उसका नाम ही उसने प्रतीक रखा था, कैरेक्टर का नाम प्रतीक था, वो तो सबको पिंकू याद रह गया, अच्छा हुआ। नहीं तो प्रतीक की तो हाँ, नहीं तो मतलब जैसे मुझे बोलते हैं कि पिंकू ऑन कोक इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो प्रतीक ऑन कोक इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ही आता मेरे पास है। सो अच्छा है लोगों को पिंकू याद है। हमारे हीरोज हमेशा लार्जर देन लाइफ हमें पसंद आते हैं। शायद हम किरदार हमेशा से ऐसे लिए उनके लिए लिखते आए हैं सिनेमा में, लेकिन जब एक आम इंसान की कहानी को आम तरीके से ही बताना हो, उसे आप एक्स्ट्रॉर्डनरी कैसे बनाते हैं? क्योंकि दैट वाज दो और दो प्यार। एक्चुअली पर यार आपको नहीं लगता क्या कि हर एक आम इंसान बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? होता है, पर मैं सिनेमा के माध्यम में देख रही हूँ, हम लोग जब आम लोगों की आम कहानियाँ भी बताने की कोशिश करते हैं, वी नॉर्मली मेक इट अ थम्पिंग एंडिंग, यू नो, अ heroic victory over odds. This was just there was a tempo to it. How we do that? मुझे मज़ा इसमें क्या आया था इस पूरी कहानी में, जिस हिसाब से लिखी गई थी और ये कैरेक्टर भी जैसे बना था, कि ये ऐसे इंसान की बात है जिसको आप रोज़ अपने आसपास ही देखते हो, शायद आपका ध्यान कभी नहीं गया, पर उसकी कहानी में एक तो हमारी हर एक की कहानी में, इंडिविजुअल कहानी में मैं हीरो हूँ, मेरी कहानी में मैं हीरो, आपकी कहानी में आप हीरो, बिकॉज यू नो, keeping yourself as a center point, you know everything that has happened to you, or you know how things should happen to you. Correct. Right? Similarly, अब सिनेमा मीडियम ऐसा है, कोई भी स्टोरी टेलिंग, कि मैं आपको ना आपका विजन यहाँ लेके यहाँ आपको सेट कर दूंगा कि अब आप देखो इसको, तो आपको हर एक ऑर्डिनरी आदमी, उसकी हर एक ऑर्डिनरी मूव भी बड़ी लगने लगेगी कि यार, एज एन एक्टर चैलेंज ये होता है कि ये चीज़ ऐसी है जो आप रोज़ देखते हो, रोज़ समझते हो, सब कुछ है, उसको कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाए। तो उसके अंदर जो लेयर्स जो है ना, एज ह्यूमन, मुझे पर्सनली हमेशा क्या ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एनीबॉडी टचेस मी द मोस्ट। सो व्हाट आई हैव ट्राइड इज टू जस्ट मेक हिम मोर ह्यूमन, जस्ट मोर ह्यूमन, कि उसे यहाँ अगर दुख भी लगा है तो कैसे लगेगा। जैसे मुझे वो सीन बहुत पसंद आया था, करते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा था, जब विद्यास कैरेक्टर के बारे में मुझे पता चलता है that she was about to buy a house with someone. I know this. She doesn't know that I know. And when she comes out of the washroom and she's, getting ready, and I just had to look at her. So that's just a pure plain stare. अब उसमें था क्या कि कैसे है? Like how could you? How could you? Why didn't I know? And on this, at the same time, my character is also cheating. On her, right? तो एक तो वो गिल्ट भी है, ऊपर से गुस्सा भी है, ये इतना लेयर्ड है कि इसको बिना डायलॉग बोले सिर्फ उसे देखना है, एंड देन इट हैज टू ट्रांसलेट टू द ऑडियंस। सो दिस इट्स अ ट्रीट फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म समथिंग लाइक दिस। इंटरेस्टिंगली अभी आपने जब पीछे मुझे बताया कि जब मडगांव की बात आई थी, कुणाल न्यू द बीट, वो खुद एक्टर रह चुके हैं। इस केस में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता, मतलब कोई आपको बीट नहीं दे पा रहा इस कैरेक्टर की, आपको एक नॉर्मल इंसान प्ले करना है। वाई डू यू एज एन एक्टर वॉन्टेड टू साइन अ फिल्म एज नॉर्मल एज दिस? यू टेल मी दैट, लाइक हाउ यू साइन सच प्रोजेक्ट्स।
माइंडसेट कहाँ से आता है? मुझे ये कैरेक्टर बहुत लेयर्ड लगा था. इनफैक्ट जितना नॉर्मल होता है ना कैरेक्टर उतना ज़्यादा लेयर्ड होता है, इज़ व्हाट आई फील. और उससे करने में भी उतना मज़ा आता है. अनिरुद्ध का कैरेक्टर दो और दो प्यार में ही इज़ कन्फ्यूज्ड, ही इज़ अ पीपल प्लीजर, ही डजंट वांट टू कन्फ्रंट एनीवन, he keeps away from confrontations, he avoids it, he is a procrastinator. आज नहीं कल देखता हूँ. उसने इतनी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की है लाइफ में जिसका उसने कभी ब्यूगल नहीं बजाया. ही नेवर प्लेड अ विक्टिम कार्ड. तो ये सारी चीज़ें मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है फॉर अ कैरेक्टर टू बी नॉर्मल एंड लेयर्ड. बिकॉज ये जितना लेयर्ड है ना उतना नॉर्मल है, उतना कॉमन इंसान है. बाकी एक आदमी ऐसा सोचो कि जो हमेशा हाई ऑन लाइफ है, ना दैट्स अ सिंगल टोन. एक आदमी ऐसा सोचो जो हमेशा नेगेटिव है, सिंगल टोन, जो पहले से उसको ऐसे ही बैठना है. अब वो सिंगल उसमें परफॉर्म करने के लिए बियॉन्ड कपल ऑफ लाइन्स एंड वन सीन यू डोंट हैव एनीथिंग. मुझे पता है कि मैं सिर्फ इसमें लोगों को साथ बुराई करने वाला हूँ या मैं सिर्फ यही करना. ऐसे कैरेक्टर करने में ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है मुझे पर्सनली दैट इट लेट्स मी एक्सप्लोर layers of same emotions. It's not only anger, it's the layers of anger. कि एंगर कहाँ से आ रहा है? सामने वाले की चीटिंग से, कि मैंने भी उसके साथ चीटिंग की है, मुझे उसका भी एंगर है कि why did I do it? Why are we at this juncture of our relationship like this? All these put together is frustrating. This frustration is also feeding into the anger, and that's the reason that that sequence where we have a confrontation, it makes it look so real, relatable and yet simple. कि हाँ ये सब घर में होता है. जब दो और दो प्यार was about a normal person, an ordinary person की एक रोज़मर्रा की कहानी, शादी हमारे इस कॉर्पोरेट से भरे शहर में हर कोने में कहीं होगी. Then you come with something like अग्नि, जहाँ पे एक as you have just said कि जब हम एक नॉर्मल कैरेक्टर प्ले करते हैं हमारे पास कुछ और हाइड करने को नहीं है, हम बस लेयर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहाँ पे there is talent, there is valiance, there is heroism, there is a certain एक होता है ना, एक रुबाब है एक कैरेक्टर का. व्हेन यू प्ले विठल राव फॉर दैट मैटर, ये कैसे, ये डिफ़िकल्टी आपको पता है कि ये अब सिर्फ एक मानसिक डिफ़िकल्टी नहीं है कैरेक्टर की, ये एक शारीरिक डिफ़िकल्टी भी रहेगी. फिजिकली भी इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंज फॉर यू. एनी हाउ द फायर एंड द एलिमेंट एंड द वे यू हैव टोल्ड द स्टोरी विच आई थिंक बेयरली, मैंने शायद पता भी ना होती हमें, मैं बहुत ब्लेटेंटली बोलती हूँ, हमने बहुत रिस्ट्रिक्टिव सिनेमा रखा हुआ है उस जोन में. फिर ये वाली रेंज कैसे? इस साल इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है पूछने को, ये ऐसे 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 ये कैसे? तो विठल का कैरेक्टर ना जैसे मैंने उसको समझा था जब आई स्क्रिप्ट राहुल, क्योंकि राहुल इज़ नोन टू, एक टेंशन है उनकी स्क्रिप्ट्स में, एक अंडरलाइनिंग टेंशन हमेशा रहती है. कैसे, हाउ डिड यू अप्रोच टू? उन्होंने जैसे नरेशन किया था ना, वेरी फ्लैट नरेशन, कि ये ऐसी स्क्रिप्ट है, ये है, इसको ऐसा है, फायर फाइटर्स की कहानी है, एंड दे हैव देयर एंग्स्ट दैट दे वर नेवर अप्रिशिएटेड द वे दे शुड बी, एंड देयर आर फायर सीक्वेंसेस. इतना उन्होंने बताया. मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी. मुझे जो इस कैरेक्टर में एक लगाव जो लगा पूरी कहानी में फॉर दैट मैटर, एक तो इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश है. वी हैव नेवर सीन दिस वर्ल्ड ऑफ फायर फाइटर्स सो क्लोजली. और फॉरगेट अबाउट क्लोजली, वी हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस वर्ल्ड. बहुत थोड़ा सा शायद अमिताभ की एक फिल्म में, बहुत 1970s 80s में कहीं एक बस थोड़ा सा एक कोई फिल्म बर्निंग ट्रेन, नहीं नहीं, अब मैं नाम भूल रही हूँ, बस एक वही फिल्म मुझे याद है जहन में जहाँ पे थोड़ा फायर फाइटर्स की ज़िंदगी पे कुछ रोशनी थोड़ी सी बस कुछ चंक के लिए डाली गई थी, बट दिस वाज अ फिल्म डेडिकेटेड टू देम. सो एक तो ये बहुत ही फ्रेश पॉइंट था. दूसरा ये था कि उनका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है ना, that's fantastic, because that keeps you engaged and it gives you immersive experience of the world that he has created. So वो एक comfort था, एक उनका एक confidence था एज अ डायरेक्टर उन पे कि यार ये जिस हिसाब से ये सोच रहे हैं वो बहुत अलग से निकलेगा. And as far as the character is concerned, so why Vitthal is a hero for me? Not because of his appearance. The biggest heroism is that whatever he does it without heroism in his mind. He does it with passion. और ये चीज़ इतनी अनकॉमन है देखने में. डेफिनेशन ऑफ हीरोइज्म ही एनी हाउ बहुत डिफरेंट है हम सब के लिए. मेरे लिए माय फर्स्ट हीरो वाज माय फादर, which is the case for I guess 99 people out of 100 people, or maybe 100 out of 100 people, right? Now my father was a teacher.
टीचर्स का भी क्या होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, हर साल बदलते हैं, जाते हैं, वो जाके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये वो सब बनते हैं, टीचर वहीं रहता है, Exactly. टीचर वहीं रहता है। अब हर एक की लाइफ में अपनी अपनी जर्नी में सबको, मुझे भी आज पूछा जाता है कि आप यहाँ पहुँचे, आपको कैसा लगता है, ऑल द सक्सेस बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, हाउ मैनी ऑफ अस एक्चुअली गिव दिस क्रेडिट टू द गुरुज एंड द टीचर्स? Very few. अब जो इमीडिएट उस फील्ड से जुड़े हैं, जैसे आप किसी डांसर से पूछो गुरु, सिंगर से पूछो गुरु, बिकॉज यू आर स्टिल Yeah, कनेक्टेड, creative fields में Creative fields में। mainly creative field बट में. कितने इंजीनियर्स को सुना है जिसको याद है कि मेरे पहले जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे ना, जिन्होंने मेरे अंदर ये प्यार इस फील्ड को लेके जगाया, ही डिजर्व्स अ क्रेडिट, बिकॉज वी डोंट इवन नो। हमारा ध्यान शायद उस टाइम पे इमीडिएट सक्सेस पे है, या वहाँ आई हैव सीन माय फादर दिस वे, ही वाज अ हीरो फॉर मी, not because of only the profession that he was in, but the way he lived his life. इतने सारे कंस्ट्रेंट, इतने सारी मजबूरी, इतनी सारी चीज़ों में वो रोज़ सुबह उठना, उसी फर्राटे से काम पे जाना, हमारे साथ उतना ही ज़िंदगी को भी ऐसे प्रेजेंट करना कि यार इतनी मज़ेदार लाइफ है। ना लाइफ को पैसों से देखा, ना लाइफ को ज़रूरतों से देखा, ना लाइफ को घर से गाड़ी से देखा। सो मुझे लगता है ऐसे हीरोज़ हैं कहाँ, दीज आर रियल लाइफ हीरोज़। विट्ठल का कैरेक्टर कितना सिमिलर है हमारे आसपास के लोगों से, आवर फादर्स, माय फ्रेंड्स, माय कजिन्स, देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दिस। They are the true unsung heroes, I feel. एंड ये ऐसे लोगों की हम बात कर रहे थे, सो विच वाज अ ब्रीफ टू द होल टीम आल्सो। वी आर टॉकिंग अबाउट देम, they will look like heroes, but let us not make them hero in our minds. Understood. That's the reason I guess the maximum comments that we are receiving is that it's a believable world, these are all real life, real people that we see on screen. In fact मुझे बेस्ट कमेंट इस फिल्म के बाद जो मिला वो ऐसा था कि हम दूसरे सीन के बाद ये भूल गए थे कि ये एक्टर है कोई. We felt that this is the world. Beautiful. So this is what we always strive to achieve. Sometimes you can, sometimes you can't. But this is how I guess I fell in love with Vittal's character. कि वो रोज सुबह जाता है, उसे पता है उसका बेटा भी उसे भाव नहीं देता. वो चाहिए कि मुझे उसकी आंखों में भी कुछ जीतना है, but that doesn't make him bitter. वो उससे कड़वाहट नहीं ले रहा है थोड़ा सा हल्का पेन है, but that's okay, it happens. And that's also very normal emotion, I think. हम वो भी एक्सप्लोर नहीं करते. बच्चे अपने पेरेंट्स को किस लेंस से देखते हैं, और क्योंकि वो उधर स्कूल में क्या फेस कर रहे हैं वो माँ बाप को भी नहीं पता. एक सोसाइटल व्यू पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है. और राहुल की फिल्मों में एज ऑलवेज सेड, वो एक सोसाइटी को देखने का लेंस जो है ना उनका, वो काफ़ी डिफरेंट है, बहुत अलग है वो, और वो बहुत इंटरेस्टिंग. दैट मेक्स इट मोर ह्यूमन यार. अगेन द सेम थिंग, मतलब हम सब में खामियां हैं, हम सब में ईगो भी है, और ज़रूरी नहीं है कि हम. अच्छा, दूसरा ये है कि पेरेंट्स को आप सीधा भगवान भी मत बनाओ, वो इंसान है. Exactly. उनसे गलती भी हो सकती है, बिकॉज वी आर ऑल सेम पीपल. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं उनके पास कुछ पंख नहीं है, ऐसा कोई तो पैदा ही नहीं होते. Exactly. मुझे पर्सनली लगता है कि, और ये बात बहुत बड़े होने के बाद समझ आती है, वी ऑलवेज रन टू आवर पेरेंट्स फॉर एनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बट देयर आर डेज इफ दे कांट हैव अ सोल्यूशन. That's okay, no? Okay. It happens. They can also have a normal day to say, यार नहीं पता how to do this, we'll navigate together. Yeah. Still they have this line to say कि कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा. So जो चीज़ उनको बड़ी या महान या ऐसी बनाती है वो है उनके लाइफ का एक्सपीरियंस. जो हम कितना भी कर लें उनसे आगे तो जा नहीं पाएंगे. Exactly. वो हमेशा हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले ही रहने वाले. correct. ये सारी चीज़ें विट्ठल के वर्ल्ड की बहुत इफेक्टिव है शायद, और इसी की वजह से शायद मुझे लगता है बाकी सारा जो हम देख रहे हैं ना हीरोइज्म, ये सब डेवलप होके आप तक पहुंचता है. एक बात बताओ, डैड का सब्जेक्ट क्या था स्कूल में, क्या वो पढ़ाते स्कूल में पढ़ाते थे लैंग्वेजेस, गुजराती, इंग्लिश, अरे 2 लैंग्वेजेस पढ़ाते थे सूरत में स्कूल में. एंड वो सिंगिंग सिखाते थे. ही यूज्ड टू प्ले तबला. आता है. हाँ, तो मैं उनसे ही मैंने थोड़ा बहुत तबला सीखा, और मेरा इंटरेस्ट भी उन्हीं की वजह से आया था. ही वॉज अ डांसर हिमसेल्फ दो. Wow. So we had a creative art person already out there to, as in, He only pushed me. You should have art as a part of your life. that's very rare, because parents pushing kids toward arts and parents pushing sons toward arts is a very, I would still say, not a very heard of thing easily in the Then society. I don't know whether we've spoken about this earlier or not, but in a lot of interviews that I've spoken about him,
मैं यहाँ कॉर्पोरेट जॉब के साथ थिएटर और गुजराती फिल्में और सब जब करता था till 2016, he was the only guy who kept pushing me, leave your job, you are cut out for this, तो यही कर, फुल टाइम कर। और मैं उनको उल्टा बोलता था कि पापा ऐसे नहीं होता है, रुक जाइए थोड़ा, पहले घर ये वो थोड़ा सेटअप करते हैं फिर देखते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। और उनकी ये लाइन मैंने बहुत जगह कोट की है, एंड दैट चेंज्ड माई परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ एंड द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसे क्या होगा, खुद का घर नहीं होगा, तो भाड़े के घर में रहेगा, बिना गाड़ी के घूमेगा, पर कितना खुश होगा, उसका कहीं पर तेरी सैलरी से कोई तू खरीद नहीं पाएगा। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। एंड व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, मेरा पैकेज 2016 में कुछ 25 lakhs per annum था व्हेन आई लेफ्ट द जॉब कंप्लीटली, एंड आई जम्प्ड इनटू समथिंग वेयर आई वाज नॉट श्योर कब होगा क्या होगा। ना तब स्कैम आया था, ना तब कोई बड़ी फिल्म आई थी। मैं गुजराती फिल्में और थिएटर करता था बस। So yeah, I mean, somebody like this is a blessing in your life. And one last project which I take the onus, नहीं देखा है तो मैं आप ही से जानना चाहूँगी, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप मुझे बता रहे थे कि you want people to, there should be more people to reach out and watch for. So this film called Ded Bigha Zameen, it is released on Jio. बहुत कम लोगों को शायद पता है कि ये फिल्म आई है, रिलीज़ हुई है। Guilty as charged. That film is really very close to my heart, and I was really hoping a lot of things from that film, more so because as we were discussing, it is about a common man who is going through a lot of things because of the systems and everything. He doesn't give up. और बहुत प्यारी लाइन है उस फिल्म में कि साला होप नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक ही चीज़ ऐसी है जो मुझे इस भीड़ में, जहाँ मेरी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे अनिल सिंह, इस भीड़ में सारे अनिल सिंह हैं, उसमें जो कैरेक्टर का नाम है, सारे वही हैं। बट होप ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोज़ सुबह उठकर ये जो इनजस्टिस हो रहा है ना, उससे लड़ने की ताकत देती है। ही विन्स, ही डजंट विन, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर एनीवन हु वांट्स टू वॉच द फिल्म, बट इट्स एन इमोशनल राइड। होप पे एक मेरे को बात बताना प्रतीक, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, फिर जब स्कैम आया तब आया, हम सब ने स्कैम बहुत पसंद किया। नो इट ओवरनाइट चेंज्ड एवरीथिंग ऑन द फेस ऑफ इट, बट नॉट ऑन द फेस ऑफ द अदर्स हु हैव सीन it from the other side. It was still an uphill ride for you to prove that there is a life and a character beyond scam, because I could sense and see you were also getting trapped as एक होता है ना, एक रोल इतना बड़ा बन जाता है कि कोई आपको उसके बियॉन्ड देख नहीं सकता। उस टाइम में what kept you hopeful? आपने वो होप कैसे पकड़ के रखी कि I will keep on doing this, I have to prove कि there is more to me as an actor? So, स्कैम के बाद तो ऐसा था यार कि मैं एक्साइटमेंट बहुत था। मुझे मज़ा ये आ रहा था कि चलो फाइनली एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचा हूँ। एंड व्हेन आई एम सेइंग ऑडियंस, आई ऑलवेज हैड टू सेट ऑफ ऑडियंसेस इन माय माइंड। वन इज द एक्चुअल ऑडियंस who wants to watch something. The other set of audience is makers, where you as an actor wants to reach always. So मैं हमेशा ये सोचता था थिएटर के दिनों में भी और अभी भी कि राइटर और डायरेक्टर के दिमाग में स्टोरी लिखते या सोचते टाइम अगर तुम्हारा चेहरा आता है, दैट्स वेयर यू वांट टू रीच एज एन एक्टर। Beautiful. अब so then with this thought I never wanted to constrain myself with only one kind of performances or one kind of characters. तो मुझे ऐसा चेहरा चाहिए था खुद के लिए कि आप कोई भी इसमें सोचो तो आप मुझे सोच पाओ। अब ये जितना उन पे ओनस है उससे 4 गुना ओनस मुझ पे है कि आई हैव टू गिव देम इनफ रीजंस मैं कुछ भी प्ले कर सकता हूँ टू विजुअलाइज मी इन एनी ऑफ द स्टोरी। क्योंकि इस विजुअल मीडियम में हम जो बात कर रहे थे कि आप कैसे दिखते हैं, डू यू लुक रिच इनफ, पुअर इनफ, इल इनफ, सिक इनफ, यंग इनफ, NRI इनफ, वहाँ पे अपनी एक पहचान सिर्फ अपने क्राफ्ट से बनाने में बहुत वक्त जाता है। बहुत वक्त जाता है, पर यार ये ऐसा है कि रियाज का ही काम है। आपके रियाज को जितना काम लगेगा उतना लगेगा, और ये जितनी बार करोगे, जितनी बार घिसोगे, इतना निखरेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा आई कैन से दिस विथ द एक्सपीरियंस दैट आई गॉट थ्रू ऑल दिस ईयर्स। और उसमें मज़ा ये है कि whenever you reach there, whenever you get it, you are confident that it will be here, it will stay, because it has come through the actual route.
एज आई कीप सेइंग कि मेरे लिए कोई एलिवेटर नहीं था कि फर्स्ट से सीधा 10th फ्लोर पे चले जाता है. आई हैव क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स. जब चढ़ रहे थे तब लगता था क्या है यार, सब करना पड़ रहा है यार, The कहीं sun. शॉर्टकट मिल जाता, कहीं डायरेक्ट हो जाता. पर जब पहुंचे तो लगा अच्छा हुआ ये सब करके आए हैं, ताकि अगर 10th स्टेप से अगर 8th स्टेप पे कभी आना भी पड़े तो यू नो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं. करेक्ट. तो आगे जाने के भी जितना कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब ये वो है कि अगर आपको ब्रेक पे कॉन्फिडेंस है तब आप एक्सीलेटर दबा सकते हो. बड़ा मज़ा आया मुझे, बड़ा कुछ जानने को मिला. और इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले एक फ़नी बात का जवाब दो. चलो, काफ़ी परफॉर्मेंसेस इस साल आई, बहुत सिनेमा जितना भी देखने का वक्त मिला देखा होगा. मैं अभी से ही कोट करती हूँ कि हाँ, नहीं देखा होगा सब, पर कोई ऐसा रोल जो वो अंदर के एक्टर ने थोड़ी सी लालच दिखाई, ये मैं भी करता तो मज़ा आता. वैसे तो बहुत सारे हैं यार. बताओ, चलो एक दो बता दो, फिर कुछ और मज़ेदार करेंगे, बातें करेंगे. 12th फेल, वो देखा तो मुझे लगा यार ये करना है यार, ऐसा मिलना चाहिए, करने में मज़ा. दूसरा विजय सेतुपति, महाराजा. मतलब डायलॉग की एक्चुअल ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू टॉक. अब मुझे वैसे वो इंसान, वो एक्टर मतलब बहुत कमाल है. वो भी बहुत कमाल. कनी कुसरुती, उसने जो किया है ऑल इमेजिनर्स लाइक मी, ब्यूटीफुल चॉइसेस. ऐसा करने मिलेगा कितना मज़ा आएगा यार. कैमरा है, you are there, your face in your eyes, now do the magic. And I hope that, and when next time I get to sit with him, we have more such performances to discuss, to talk, to dissect. But it was such a delight, Prateek. Thank you for, I think we started off with the best note and you have made me laugh. और आटे और गेहूं के आटे और चावल के आटे की सब्सक्रिप्शन अब से आज से जो बढ़ेगी, जो लोग खरीदेंगे, मैं आपको मूल मंत्र दे के जा रही हूँ. But thank you for making this year good with good performances. बहुत कम होता है कि एक एक्टर को एक परफॉर्मेंस के beyond we have good 4 reasons to call you. So I think you keep on giving us more reasons to call you time and again. Thank you very much for having me. Hi, this is Prateek Gandhi and you're watching me on Bollywood Bubble.